Now, today I would like to introduce you first that I'm Ansar Idris is here. I'm the trainer, I'm the mentor of yours. I have cracked IELTS exam twice with 8.5 bands. Now, today I'm going to show you something great in English, which you never know before. So I hope you're going to enjoy it. And whatever the questions are you're going to ask me, you can ask me in the chat box, okay? Because you're not going to be unmuted. So I hope you're going to get satisfactory result from yours. So whatever is there, you can just put it into the chat box, all right? So I hope you're going to get ready for this one. So we have some of the, good, I can see here, 20 participants are there at the present time. We'll be starting in time, okay? We have given the time for 5 o'clock. We'll be starting just in time. So by the way, how many of you are just enchanted by the advertisement that what are we going to learn today? Something great. How many of you are excited? Put it in the chat box, please. Good. Payal, Kallani, Adnan, Bushra. Yes. Narzo. Okay, Rahul, Azruddin. Great. Shivdas. Okay, so would like to tell you something great about me, and that's what I'm Ansar Idrisi, and I have cracked IELTS exam twice with 8.5 bands. Now, I was the person who wasn't knowing even the meaning of make, the word make. जब मैं 11वीं में गया था, तो जब मुझे उस टाइम पर मुझे make का मीनिंग भी पता नहीं था. वर्ड एक make वर्ड है इंग्लिश के अंदर, उसका भी मीनिंग मुझे पता नहीं था. And now I'm at the stage that I am teaching teachers of convent schools. I've been teaching since 2013, doctors, teachers, lawyers, engineers, inspectors, and many other professionals. So now today I'm going to show you something great about English. Alright? तो मैंने वो टाइम से मैंने इंग्लिश को देखा है जब मुझे खुद को भी कुछ पता नहीं था इंग्लिश के बारे में. तो मैं आज आप लोगों को वो लेवल पे पढ़ाऊंगा जो कि आप लोगों ने कभी सुना नहीं था. Alright? Let's go now. So I'm going to start here. See, 5 o'clock is there. We should be very punctual if you want to become successful. Getting it? Let's go. Now today I'm going to share with you something great about English. As you can see, are you able to see my screen? All of you? Good. Yes. All right. So let me start now here. See, this is what welcome to the Cambridge Tutorial Spoken English plus Communication Skills by Ansar Idrisi. As you came to know about me, मैं कौन हूँ अब आप लोगों को तो पता चल ही गया है. You'll come to know after my teaching as well. So first of all, why are we learning English? अब हम लोग English पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों बोलना है हम लोगों को English? We are going to see today the advantages of English and the characteristics and the other things also. The importance of English we are going to see today. So point number one is what? Why English? English ही क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? English is an international language. Point number one, अब English ही क्यों है उसकी वजह मैं आप लोग को बताता हूँ आगे. For example, point number one is what? Why English is important. According to me, अगर आप लोग जाएंगे आजकल कहीं पर भी जाएंगे आप लोग को सबसे पहले मिलता है English. For example, English is everywhere. आप लोग देख रहे हैं आपकी वॉच के ऊपर English है, आपके कपड़े के ऊपर English है, बैंक्स में आप लोग पैसे डिपॉजिट करने जा रहे हैं English, education English, you are traveling somewhere, railways, airports, banks, restaurants, everywhere English. Yes or no? For example, money, bank transactions कैसे होते हैं English के अंदर. कौन सी बैंक है जो आज के जमाने में भी मराठी है हिंदी बोलती है? No, the transaction is only in English. Same case education system. As you leave your basic mandatory school, you go to college, you will find there English. Yes or no? हर जगह पर English है. Same case shopping malls, prices, qualities, many things are there in English only. So आज हम लोग बोलेंगे English. Point number one. Point number two is there. Why international English? अभी हमारे यहाँ का English क्यों भाई? Same case, अगर आप लोगों को गुजराती सीखना है तो आप लोग कहाँ जाएंगे भाई? गुजरात में. Yes or no? अगर आप लोगों को अगर सीखना है मलयालम तो आप लोग कहाँ जाएंगे? साउथ इंडिया. अगर आपको भोजपुरी सीखना है तो आप लोग नॉर्थ इंडिया में जाएंगे. सेम केस, अगर हम लोग को मराठी सीखना है तो हम लोग महाराष्ट्र में आएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्योर है. Yes or no? सेम केस, अगर हम लोगों को अगर सीखना है इंग्लिश तो हम लोग कहाँ जाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए? We have to go to London. अब इतना पैसा अपने पास तो है नहीं, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या? So for that, we are going to go to England. अब इंग्लैंड जाने के लिए पैसा है नहीं. That's why we follow all the Indian English books, जो कि हमारी पूरी UK and US की बुक्स है हमारे पास में. Second thing here,
इफ यू गो इंग्लिश, अब इंग्लिश रहने से आपके पास में क्या आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव इंग्लिश यू विल गेट कम्युनिकेशन, करेक्ट? इफ यू हैव कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन तो बहुत सारे लोगों के पास में है। इफ यू हैव कम्युनिकेशन यू विल बिकम एन एम्प्लॉय, बिकॉज सी इंग्लिश रहेगा तो आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, और इंटरव्यू क्रैक किया तो आप लोग को जॉब मिलेगी। सो इफ यू हैव जॉब यू कैन बिकम एन एम्प्लॉय। बट इफ यू हैव फ्लुएंट कम्युनिकेशन इंग्लिश, अगर आपके पास में अगर उससे अच्छा कम्युनिकेशन इंग्लिश है, देन यू कैन बिकम अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी। यस और नो? अब मैनेजर कोई ऐसे थोड़ी आदमी होता है। नो, इफ यू हैव गुड एंड कम्युनिकेशन कमांड्स इन इंग्लिश, सो यू कैन बिकम अ मैनेजर। और कम्युनिकेशन आज के जमाने में इतना मैंडेटरी है। इफ यू आर एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन, इफ यू आर एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन you'll directly become the leader. Yes or no? आज जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, बड़े बड़े लोग हैं, सबके पास में कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द एसेंशियल थिंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं, किसके जरिए कर रहे हैं? कम्युनिकेशन। इफ यू डोंट हैव कम्युनिकेशन, nothing is there. So communication is important if you want to become a leader. Point number one. Next one, now if you go through the same thing, people will judge you by your इंग्लिश। अब आप लोग इंग्लिश की क्लास में आए हैं, सेम केस। अभी आज मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं लोग, आई वांट टू कम, आई वांट टू गो। आप लोग क्या बोलेंगे? आई वांट टू कम, आई वांट टू गो, देयर इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, आई एम गोइंग टू स्कूल। इंटरनेशनल इंग्लिश, आपकी टंग की वजह से लोग आपको पहचानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, parents and children, my name is Paul, I'm married and my wife is a doctor. We have 2 children, my daughter is 8 and my son is 3. My name is Isabel, I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother, his name's Alan. My mother's a teacher and my father's a taxi driver. So जब आप लोग बोलेंगे, oh my God, आगाई मला ह्याच्याशी लग्न करायचंय, हाँ? Yes, absolutely. Because जब आप लोग बोलेंगे इंग्लिश तो वो टाइम पर पब्लिक आउट हो जानी चाहिए। oh my God, कौन बात कर रहा है ये? कौन कर रहा है? अब तक हम लोग क्या बोलते थे? Where are you going? But we have to say where are you going? Why? International English. International. Foreigners किसे बोलते हैं? She's a girl. हम लोग क्या बोलते हैं? She's a girl. Wrong. That's what girl. Girl. Same thing. Now people are going to judge you by your English. For example, if you're going to a company, people will see your English and they will judge you from there. Or if you don't know English, they will criticize you. आपको पोक करेंगे, हे ये देखे इसको इंग्लिश नहीं आता है इसको इंग्लिश नहीं आता है। They are going to humiliate you. They are going to insult you. They are going to criticize you. Why? Because of your English. अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, nothing is there. All right? Next one. Now criticism. अब अपने लाइफ के अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि आजकल हम लोगों को लोग जो है आते हैं हम लोगों को, अरे यार तू ऐसा है, तू ऐसा है, ये है, वो है, क्रिटिसाइज करते हैं। Yes or no? People are criticizing us. क्यों कर रहे हैं लोग क्रिटिसाइज हमको? क्यों कर रहे हैं भाई क्रिटिसाइज? क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई हम लोग का लेवल क्या है। क्या है हम लोगों का लेवल? हम लोग कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, है कि नहीं? So this is what people are criticizing us. Why? Because of our English. Same case. उसके अंदर भी क्या आएगा? If you have criticism, you have humiliation. दुनिया इंसल्ट करती है, कहाँ क्या करूंगा? सेम प्रॉब्लम मेरा भी था, मेरा भी सेम प्रॉब्लम था। जब मैं छोटा था, जब when I was in class 11, मैं सोचता था यार मैं लोगों के बीच में जाके कैसे खड़े रहूंगा, कैसे लोग मुझे जज करेंगे। Now people are judging me by my English. My English. इंसल्ट होता था, और वो इंसल्ट की वजह से क्या होता था? बाकी की चीजें आती थी। फॉर एग्जाम्पल, और बाकी चीजें क्या रहेंगी? बुली। या तो आप बुली बन जाएंगे, गुंडा बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, और एल्स you'll have some kind of fear. कुछ टाइम का फियर रह जाएगा आपके अंदर, क्या यार मुझे इंग्लिश नहीं आती। आज कितने लोग हैं जो कि डायरेक्टली फॉरेनर लोगों से बात करते हैं? प्लीज टेल मी, कितने लोग आप लोगों में से, प्लीज पुट इनटू द चैट बॉक्स, कितने लोग फॉरेनर लोगों से डायरेक्टली फ्रैंकली जाकर बात करते हैं? यस, चैट बॉक्स में डालिए प्लीज कि मैं करता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू? नो, नहीं करते, राइट? नो वन, नो वन। ओके, हनीफ इज देयर, अल्ताफ इज देयर, वेरी गुड। बहुत कम लोग हैं। मीटिंग में कितने लोग हैं? उसमें से सिर्फ 2 लोग बोल रहे हैं कि हाँ मैं बात करता हूँ फॉरेनर्स के साथ में। सेम केस, कितने लोग बात करते हैं? बिकॉज उन लोग का जो एक्सेंट है, उनका जो लैंग्वेज है, वो हम लोगों का बहुत अलग है। वो लोग कैसे बोलते हैं? शी इज गर्ल, और हम लोग क्या बोलते हैं? शी इज अ गर्ल।
मतलब वो बगला है। अगर वो लड़की को मालूम पड़ा कि मेरे को बगला बोल रहा है, पानेत बगड़ा असतो ना, कितना मारेगी पकड़ के, वो मला बगला बोलता है, wrong. So this is what English. Same case, let's have one more example. If you have such kind of fear, you'll be at last in the depression. आप लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे. Same case, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी लाइफ में. और else, second thing, without English. अब without English आपके पास में रहेगा क्या? क्या रहेगा आपके पास में इंग्लिश के? Nothing. Without English एक चीज हो सकती है, that you will die. हाँ, अब आप लोग को लगेगा कि यार क्या झूठ बात कर रहा है यार, ये बिना इंग्लिश के कैसे मर सकते हैं? मैं अभी तक मरा क्या? देखो, इंग्लिश के बिना मैं मरा क्या? नहीं ना, बिना इंग्लिश के कैसे मर सकते? यस, इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू विल डाई. हाउ? कैसा भाई? अगर इंग्लिश नहीं रहेगा तो आप लोग मर जाएंगे. कैसा? I'll give you an example. Suppose for example, if you are going to a medical for medicine and there is a power failure, वहां पे लाइट गई हुई है मेडिकल के अंदर. मेडिकल वाले ने क्या किया? उठा के आपको एक जहर की गोली दे दिया उठा के. आप लोग को इंग्लिश आता नहीं, आपने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, उठा के वैसे खा लिया. क्यों भाई? इंग्लिश नहीं आता था, भाई ने जहर खा लिया, मर गया. सो विदाउट इंग्लिश यू विल डाई. यस और नो? एम आई राइट? प्लीज पुट इनटू द चैट बॉक्स. एम आई राइट? अगर इंग्लिश नहीं रहेगा, मे गॉड हेल्प यू. यस, यस. So this is what English. Next one, I'm moving to the next one, and that's what English. Again, why English? International English. So if you have English, communication. How many of you want to become billionaire? कितने लोगों को लगता है कि मुझे करोड़पति बनना है? Yes, Tanya is saying yes. I, Adnan, Kalyani, yes, yes, very good. Many people. हर एक को लगता है. उसके लिए चाहिए communication. Communication. Why? Because see, communication की वजह से आज आप लोग पैसा कमा सकते हैं easily. I'll give you an example. मैंने दोपहर की मेरे बैच में एक एग्जाम्पल दिया था. अपने स्कूल वाले लोग हैं, वो लोग एक चीज बोलते हैं, डोनेशन भरावं लागेल आपल्याला. They say donation. Actually that's not donation, that is extortion. Yes or no? डोनेशन चैरिटी को बोलते हैं, वो लोग चैरिटी नहीं लेते, डोनेशन आपको बोलकर लेते हैं. सो एक वर्ड को उसने चेंज किया है, एक्सटॉर्शन को डोनेशन बोला है, तो वर्ड कितना अच्छा बना है वो. सेम केस, फॉर एग्जांपल, आज आप लोग जाते हैं इंग्लिश में किसी को बोलते हैं यू स्टूपिड, सामने वाला पकड़ के मारेगा आपको. यस और नो? बट स्टूपिड बोलने से अच्छा आप लोग उसको क्या बोलेंगे? कुछ अलग वर्ड में उसको आप लोग गाली दे सकते हैं. मैं गाली नहीं सिखा रहा हूं आपको, बट आप उसको बोल सकते हैं यू चार्ली. ओ कितनी भारी वर्ड बोला मला. चार्ली. एक्चुअली द अनदर मीनिंग ऑफ चार्ली इन इंग्लिश इज व्हाट? मैड, स्टूपिड. स्टूपिड के लिए दूसरा वर्ड इंग्लिश के अंदर क्या है? चार्ली. May God help. आपका communication will give you billion of rupees. For example, if you have communication, you can go to companies. You can crack interviews. You can go to companies, or you can do deals with the companies, or you can do business with the companies, or you can go abroad. बाहर countries जा सकते हैं आप लोग. And whenever you're going to have all these things, you will lead to money. So बिना कम्युनिकेशन के अपने पास क्या आएगा? कितने लोग ऐसे आप लोगों ने देखा रहेगा जो सक्सेसफुल लोग हैं, मुक्के हैं, वो लोग बोलते नहीं बेचारे, और वो सक्सेसफुल हैं. कितने लोगों को देखा है आप लोगों ने? 0% रहेंगे. So communication is very important. So if you are speaking English, boom it. Second thing, same case. Now for example English. Again, अब English के बारे में और कुछ मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को. For example, if you have English, then Dan Lok, one of the most amazing person on the earth, billionaire. Next, Sandeep Maheshwari. Next, Shah Rukh Khan. क्या ये भिखारी लोग हैं? No, they are rich people. They are crorepati's. They are millionaires. They are billionaires. Why? Because of motivational speakers are they. And motivational speaker बनने के लिए बनना क्या पड़ेगा आप लोग को? Good communicator. If you have good command on communication, you'll become amazing, unstoppable. Am I right? And you'll become billionaire at the end. कितने लोगों को लगता है कि मुझे करोड़पति बनना है? लगता है, पर बनेंगे कैसा? Communication. So communication will lead you to the heaven, and you will become a billionaire one day. मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. मैं आज आपको पहला सीक्रेट बताने वाला हूँ इंग्लिश का. क्या होता है, कैसा होता है, इंग्लिश बोलना कैसे, क्या मेन टिप है इसका. So let's go for further. Next one, communication. English communication success. अब आपके और कम्युनिकेशन की सक्सेस के बीच में चीज क्या आ रही है? So that the main thing is what? Your mindset.
सबसे पहला हमारा माइंडसेट काम करता है। हमारा माइंडसेट क्या है? बाबा मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, क्यों करूंगा, कैसे करूंगा। आज यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं मेरा लेक्चर देखने के लिए, राइट? नाउ वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, हमारा माइंडसेट के ऊपर काम ही नहीं है। पहले मैं आप लोग को माइंडसेट बनाऊंगा, देन वी आर गोइंग टू गो अहेड। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अब कितने लोगों ने माइंडसेट के ऊपर काम किया है? यस, प्लीज टेल मी, कितने लोगों ने माइंडसेट पे काम किया है? मैं माइंडसेट का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, दैट माइंडसेट बोलते किसको है, ओके? अब अपने यहाँ पर कितने सारे लोग ऐसे रहेंगे, अरे 5 दिन में कहाँ इंग्लिश सीखते, अरे ऐसे थोड़ी होता है, अरे ऐसे थोड़ी होता, तुला को नहीं बोल रहे, अरे ऐसा थोड़ी हंसतो। कितने सारे लोग कुछ नहीं बातें सारी बातें बनाते हैं, यस और नो? बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। माइंडसेट के बारे में आपको बोलूंगा। अब माइंडसेट अगर आपका अच्छा नहीं है, आप लोग जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। मैं आपको एक पहले स्टोरी बोलूंगा, उसके बाद में हम लोग आगे हमारा इंग्लिश का लेक्चर लेकर जाएंगे। नाउ आई विल टेल यू अ स्टोरी एंड द स्टोरी इज अबाउट व्हाट? एन एलिफेंट। एक एलिफेंट के बारे में स्टोरी है। Once what happened, there was an elephant and the elephant was tied with a small rope. तो वहां से एक मरतबा क्या हुआ, there was a man and he was going through a street. एक आदमी था, वो रास्ते से जा रहा था, and he saw there was an elephant and that elephant was tied up with a small rope. The man was enchanted. Oh my God, his mind blew up. ऐसे कैसे हो सकता है यार? एक इतना बड़ा हाथी है और इतनी पतली सी रस्सी के साथ में वो बंधा हुआ है। वो आदमी को बहुत अजीब लगा। So the man went to the owner. वो बोला यार नहीं यार, मेरे को हजम नहीं हो रहा यार, इतना बड़ा हाथी है, इतनी पतली रस्सी से बंधा हुआ है, कैसे क्या? How? So the man went to the owner. कि भाई आपको नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा हाथी है, वो तोड़कर रस्सी को चला जाएगा? The elephant is there. It will tie up the rope with it, so he can break it. It can go away. It can escape. So the owner of the elephant, he smiled at me. मेरे ऊपर स्माइल किया उसने बेचारे ने, and he said no, वो एलिफेंट तोड़कर नहीं जाएगा। मैंने बोला ऐसे क्यों भाई? वो तो इतना बड़ा एलिफेंट है, वो तो कुछ भी तोड़ सकता है, तो इतनी सी रस्सी को तोड़कर क्यों नहीं जाएगा वो? So the elephant owner said, actually when this elephant was a baby, at that time I tied this elephant baby with this rope, and it tried a lot at the time to escape, but it was failed. And this that time he has made up his mind, and the same mindset is he is having now at the moment. That's why he is being a slave and he couldn't leave from here. उसने बोला कि जब वो एलिफेंट छोटा बेबी था, मैंने तब ये एलिफेंट को वो छोटी पतली रस्सी के साथ में बांधा था। वो टाइम पे ये एलिफेंट के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, इतनी एनर्जी नहीं थी। एट दैट टाइम, त्या टायमिंगला या एलिफेंटनी खूप प्रयत्न केला, कशाचा? तोडून जायचा, पण प्रयत्न काय? फेल झाला। तो प्रयत्न फेल हो गया उसका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी ना। उसने ट्राई किया 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 एंड एट द एंड छोड़ दिया। उसने बोला नहीं यार, मेरे से नहीं टूटता है, मैं नहीं जाऊंगा। और सिंस दैट डे वो एलिफेंट वैसे ही है, और आज भी वो एलिफेंट पतली रस्सी से बंधा हुआ है, क्योंकि उसके माइंडसेट के अंदर क्या लगा हुआ है कि मैं ये रस्सी को तोड़ नहीं सकता। सेम केस वो एलिफेंट का माइंडसेट था। दिस इज दी एलिफेंट माइंडसेट, कि उसके दिमाग में ये लगा हुआ है कि बाबा मैं रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूं। एंड सिंस दैट डे द एलिफेंट बीइंग अ स्लेव, और वो एलिफेंट उसका गुलाम बन के रह गया है। डोंट यू थिंक दैट आवर माइंडसेट इज द सेम? आप लोग को नहीं लगता कि अपना भी माइंडसेट ऐसे ही है? हम लोग को भी ऐसे लगता है कि यार मैं इंग्लिश पढ़ूंगा क्या नहीं, मैं बोलूंगा क्या नहीं, मेरे को इंग्लिश आएगी क्या नहीं, क्या मैं कर सकता हूं क्या? सेम केस, हम लोग कब तोड़ने वाले हैं फिर इसको, रस्सी को? कितने लोग सोचते हैं कि मैं ये रस्सी को तोड़ने वाला हूं? प्लीज पुट इनटू द चैट बॉक्स। हमारा भी माइंडसेट ऐसा ही हो गया कि बाबा ये रस्सी को मेरे से जाती नहीं है, मेरे को इंग्लिश कभी आएगा नहीं, क्या यार मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ क्या, मैं इंग्लिश कर सकता हूँ क्या, मैं ऐसा हो सकता हूँ क्या, मैं वैसा हो सकता हूँ क्या, मैं इंग्लिश बोलूंगा? यस, आई वॉज द पर्सन हु वाज फ्रॉम उर्दू मीडियम and I'm speaking English like foreigners now, so you can speak too. This is my guarantee. So this is what I want to share with you. So here we come with our second tip of English. आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का बेसिक, जो मेन टिप ऑफ इंग्लिश। कितने लोगों का इंग्लिश का बेसिक क्लियर है? अब मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे अरे यार क्या बात करता है। नाउ
सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर आप लोगों का बेसिक, अगर आप ये फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, ओके, अब बिल्डिंग का अगर बेसिक अगर अच्छा नहीं रहेगा तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी क्या? नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो, नहीं खड़ी रहेगी। सेम केस, सेम केस, सेम केस, अगर जैसे बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती, उसका बेसिक होना बहुत जरूरी है, बेस। कितने लोगों को इसके अंदर आता है एबीसीडी? अब आप लोग बोले अरे यार एबीसीडी होने वाला है यार, हे एबीसीडी तो मेरे को आता है, मेरे को कुछ तो नया सिखाओ। सेम केस माइंडसेट, अभी मैंने आपको माइंडसेट का स्टोरी बताया, कितने लोगों को स्टोरी समझ में आ रहा है, कितने लोगों को स्टोरी अच्छा लगा है, ये कितने लोगों का स्टोरी ने पूरा माइंड उड़ा दिया है? हाउ वाज द स्टोरी, कैसा था स्टोरी वो? सो इट वाज okay, good, awesome, amazing, good, best, amazing, great, good, nice. It was enchanting, it was good, nice. Same case, अब हम लोग को हमारा माइंडसेट बदलना है। कितने लोगों को बेसिक पता है? आज मैं आप लोग को कुछ इंग्लिश के अंदर ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आप लोगों ने ना कभी सुनी थी, ना कभी देखी थी, ना आपको पता था। वेरी शॉकिंग, विद द प्रूफ, प्रूफ के साथ। मैं ऐसे कुछ भी फेंकने वाला नहीं हूं, प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा। So tip number one is what? The basic, and the secret tip is what? The mandatory tip is what? You should know basics. आपको basics पढ़ाऊंगा मैं आज। First, point number one, basic. Now what is basic in English? ABCD. आज हम लोग के पास में ABCD का main pronunciation भी नहीं है। उसके पहले हम लोग कुछ और चीज देखेंगे। Now for example, what is the origin of English language? कितने लोगों को पता है what is the origin of English language? People think, अब मैं पूछूंगा इंग्लिश सबसे पहले कहां से आया है, तो लोग बोलते हैं इंग्लैंड, इंग्लैंड। रॉन्ग, रॉन्ग, व्हाई? अरे इंग्लैंड से आया है? नहीं, इंग्लिश इंग्लैंड से नहीं आया है। अमेरिका? नो। लैटिन? नो। हिब्रू? नो। तो इंग्लिश आया कहां से? पॉइंट नंबर वन, सो इंग्लिश ओरिजिनेटेड फ्रॉम टर्की। अरे अजीब है यार, इंग्लिश ओरिजिनेटेड फ्रॉम टर्की, इंग्लिश इंग्लैंड टर्की से आया, कैसे किया? Yes, this is the tip. Now I'm going to show you how with the proof. Same case, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले इंग्लिश इंग्लैंड ने नहीं बोला, टर्की ने बोला था। और ये ऐसा मुझे किसने बोला है? इंग्लैंड वाले लोग खुद बोल रहे हैं। I'll give you the proof. Second thing, what is the origin of English alphabets? ABCD कहां से आया है? कितने लोगों को पता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कितने लोगों को ऐसा हुआ है कि वो भाई पहली बार सुना है मैंने ये? Yes, कितने लोगों ने सुना है कि वो पहली बार सुना है? Yes, कल्याण is saying yes, me. आज तक आप लोगों को टीचर ने बताया कभी ये कि बेसिक इंग्लिश का कहां से आया है? तानिया इज सेइंग यस, फर्स्ट टाइम। नहीं पता है लोगों को। इंग्लिश, यस, रियलमी, दैट नजरो, ओके। सेम केस, इंग्लिश कहां से आया? बेसिक एबीसीडी केम फ्रॉम ग्रीक लेटर्स, दैट्स व्हाट, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा, लेमेडा, ओमेगा, सिग्मा, थीटा। आप लोगों ने बचपन में पता है आपके साइंस वगैरह के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा था, थीटा, ओमेगा, सिग्मा, वहां से आपका एबीसीडी आया है। अल्फा से आया ए, बीटा से आया बी, कप्पा से आया के, लैमेडा से आया एल, गैमा से आया जी, वहां से आपका एबीसीडी आया है। आधे से ज्यादा टीचर्स को भी पता नहीं है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन माय क्लास टुडे, इवन योर टीचर्स डोंट नो, आपके टीचर्स को भी पता नहीं है। बाय द वे, कितने लोगों को धक्का लगा ये पहला शीट देखने के बाद में कि बाबा अरे यार ये तो मुझे पता भी नहीं था? यस, तानिया, अश्विनी, कल्याणी, अल्ताफ, मुद्दू, गैस, किरण। सेम केस, ऐसी कुछ ग्रेट चीजें मैं आप लोगों को आगे मेरे लेक्चर में बताने वाला हूं। ऐसी चीजें जो कि आपको पता ही नहीं, बेसिक ही हमारा क्लियर नहीं तो हम लोग आगे के इंग्लिश बोलेंगे कहां से? सेम केस, नाउ दिस इज द प्रूफ, आर यू सीइंग दैट? प्रूफ आपके सामने है, कुछ भी फेंकता नहीं हूं मैं, प्रूफ आपके सामने है। बीबीसी न्यूज, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, वो बीबीसी न्यूज का न्यूज है आपके सामने ऑफ 2012, 25 अगस्त 2012। ब्रिटिश लोग खुद बोल रहे हैं, उन लोग के खुद के न्यूज़पेपर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज ओरिजिनेटेड इन टर्की। इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले टर्की से आया था। प्रूफ इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो जो लोग बोलते हैं इंग्लैंड से आया, अमेरिका से आया, दे आर रॉन्ग। अब सोचो उन लोग का इंग्लिश कितना रॉन्ग रहेगा। गेटिंग इट? सेम केस, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ इंग्लिश अल्फाबेट्स, करेक्ट? इंग्लिश अल्फाबेट्स, राइट? रॉन्ग,
इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट्स। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है प्लीज? आई लिसनिंग मी? यस, दैट मिस्टर गैलेक्सी M31, उनका प्रॉब्लम है रियल उसका नेटवर्क का, सॉरी। सो इंग्लिश अल्फाबेट्स, राइट? अपने जितने भी बेसिक बुक्स है ना अपने इंडिया के, सब बुक्स के अंदर आपको सेम मिलेगा, इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स। रॉन्ग, गलत है वो। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज इट इज नॉट इंग्लिश अल्फाबेट्स, इट इज इंग्लिश अल्फाबेट्स। It is English alphabet. Why? Because A to Z, it is only one set. A to Z is one set. गौर से बात मेरी सुनना, ओके? इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं है वो है इंग्लिश अल्फाबेट, बिकॉज A to Z it is only one set. अभी फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैं बोलता हूं ये मेरे पास में एक फोन है, करेक्ट? मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज अ फोन। एक से ज्यादा रहेगा तो मैं क्या बोलूंगा? फोन्स। Galaxy M31, actually your problem is there for network. बाकी लोग को आवाज आ रहा है सर। Miss Madiha, can you please go through that person? Help him please. Yes sir, yes sir. Thank you. Yeah, so this is what one phone, एक से ज्यादा रहेगा तो phones. Yes or no? Same case, one finger, two fingers. English alphabet A to Z it is one set, एक सेट है वो, तो उसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट बोलेंगे, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे। अपने सब बुक्स के अंदर अल्फाबेट्स लिखा हुआ होता है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ग्रामर के अंदर मिस्टेक हमारा ये है। नेक्स्ट वन, इंग्लिश अल्फाबेट के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, करेक्ट है क्या वो? नो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है, बेसिक के स्टार्ट में लेटर में फुल स्टॉप नहीं आता है, ओके? So English alphabet A to Z, there are 26 letters. Okay, so this is called English alphabet, not alphabets. Point number 1. Second thing, अब हम लोग आगे जाते हैं, letters. How many letters do we have in English? कितने letters हैं हमारे English में? We have 26 letters in English. Okay, 26 letters हैं हमारे पास में। A to Z there are 26 letters. अब उसके अंदर से vowels कितने हैं? 5. What are those vowels? A, E, I, O and U. वॉवल्स क्या होता है? वॉवल्स क्या होता है जिसको आप लोग मराठी में बोलते हैं स्वर? उर्दू के वॉवल्स कितने लोगों को पता है? अब यहाँ पे आधे लोगों की हवा टाइट हो जाएगी, अरे यार उर्दू के वॉवल्स ये क्या होता है? उर्दू के अंदर भी वॉवल्स होते हैं। मराठी वाले को मराठी नहीं आती है, उर्दू वाले को उर्दू नहीं आती है। 10 साल के अंदर, 10 साल तक आप लोगों ने किया था मालूम है? आप लोगों ने 10 साल तक आपका पूरा इंग्लिश मीडियम पढ़ा, उर्दू मीडियम पढ़ा, मराठी मीडियम पढ़ा, सबको नहीं आता है। यस नो? सेम केस। नाउ मराठी मीडियम वाले कितने लोग हैं? कैन यू प्लीज पुट इनटू द चैट बॉक्स। मराठी मीडियम से कितने लोग हैं जो घर में मराठी वगैरह बोलते हैं मराठी मीडियम से? पायल, प्रियंका, अश्विनी, यस, मुद्दू, धनश्री। क्रिकेट को मराठी में क्या बोलते हैं? आता 10 वर्ष आपल्याला झालेत बरोबर ना मराठी बोलताना, तरीही आपल्याला माहित नाहीये की बाबा मराठीमध्ये क्रिकेटला काय म्हणतात? काय म्हणतात क्रिकेटला? येस, धावपट्टू, खेळ, चेंडू, फड़ी। चेंडू फड़ी नहीं, चेंडू मतलब यानी बॉल, फड़ी मतलब बैट। मैंने क्रिकेट पूछ रहा हूं आप लोगों को। ओरिजिनल मराठी के अंदर क्रिकेटला म्हणतात, ओरिजिनल मराठी मध्ये क्रिकेटला म्हणतात लंबदंड गोलपिंड, करेक्ट? सी दीज आर माय स्टूडेंट्स। लंबदंड गोलपिंड ओरिजिनल मराठी में बोलता है। अरे बाप रे, हे काय? आप जाके किसी ओरिजिनल मराठी वाले को पूछो। मराठी मीडियम वाले को मराठी आता नहीं है। उर्दू मीडियम वाले कितने हैं ये क्लास के अंदर? ओके, अर्शी, ओके, आमिर, अदनान। कार को उर्दू में क्या बोलते हैं अर्शी? कार को क्या बोलते हैं उर्दू में? कार इज इंग्लिश वर्ड, राइट? उर्दू में क्या बोलते हैं कार को? सुमैया इज देयर। सैयारा बोलते हैं, करेक्ट, सैयारा। अच्छा, कुत्ते को उर्दू में क्या बोलते हैं? प्योर उर्दू में कुत्ते को क्या बोलते हैं? व्हाट इज कुत्ता इन इंग्लिश, इन उर्दू, सॉरी, प्योर उर्दू में कुत्ते को क्या बोलते हैं? अच्छे अच्छे लोगों को मालूम नहीं है। यस नो? सग बोलते हैं, सग।
उर्दू वाले को भी उर्दू आती नहीं है, मराठी वाले को मराठी आती नहीं है. सेम केस इंग्लिश हम लोगों को बोलना है. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू द ट्रिक. नाउ इंग्लिश के अंदर 5 वॉवल्स हैं, करेक्ट, जिसको आप लोग मराठी में स्वर बोलते हैं. इंग्लिश में 5 वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू. व्हाई वॉवल्स आर वॉवल्स? इंग्लिश में 5 ही वॉवल्स क्यों हैं? B is not a vowel, C is not a vowel, D is not a vowel. They are what? Consonants. वो जो बाकी के हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? Consonants. All right? We are going to call them consonants, and the consonants are 21. B, C, D, F, G, H. ये सब क्या है? Consonants हैं. इंग्लिश में 5 ही vowels हैं, बाकी सब consonants हैं. D vowel क्यों नहीं है? D vowel कहाँ नहीं है बाबा? Yes. C vowel कहाँ नहीं है? L vowel कहाँ नहीं है? आपके टीचर ने कभी आपको बताया था ये? नो, बिकॉज योर टीचर्स यू डोंट नो. आपके टीचर्स को भी पता नहीं है. सॉरी टू से दिस. इवन योर टीचर्स डोंट नो, बिकॉज व्हेन वी अटर द साउंड ऑफ वॉवल्स आवर ब्रेथ डजंट गेट ब्लॉक, इट कम्स इजीली आउट. जब हम लोग वॉवल्स का साउंड निकालते हैं तो हमारी जो ब्रेथ है वो ब्लॉक नहीं होती है, उसका साउंड डायरेक्टली बाहर आता है. फॉर एग्जाम्पल, ए, ई, आई, ओ, यू, साउंड इजीली बाहर आता है हम लोगों का. आपका जो ब्रेथ है वो ब्लॉक नहीं होता है, वो ब्लॉक नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ए, ई, आई, ओ, यू, nothing happened to my finger. But the moment when I utter the sound of consonants, my breath will get blocked fully or partially. For example, B. जब तक कि मैं मेरे लिप्स नहीं छोड़ूंगा मुझे बी बोलने ही नहीं आएगा. ए, ई, आई, ओ, यू, इजीली निकलता है प्रोनाउंसिएशन. बट एल पार्शली ब्लॉक. एच, कितने लोगों को पता था ये सब? मेरे स्टूडेंट्स लोगों को छोड़कर कितने लोगों के लिए न्यू था ये? प्लीज पुट इनटू द चैट बॉक्स. अर्शिया, यस. अल्ताफ, अश्विनी, गुड. वॉवल्स वॉवल्स क्यों है? क्योंकि उनके बिना कुछ बनता ही नहीं है इंग्लिश के अंदर. सो व्हेन वी अटर द साउंड ऑफ वॉवल्स आवर ब्रेथ डजंट गेट ब्लॉक, इट कम्स इजीली आउट. ए, ई, आई, ओ, यू, बट एच blocked. L partially blocked. K blocked. K blocked. So this is what vowels and consonants in English. So we have 5 vowels in English and there are 21 consonants we have. All right. Next one. Now next comes weak vowels. अरे अभी तो vowels सुना था. Vowels तो सबने सुना रहेगा. Weak vowels क्या होता है इंग्लिश में? कितने लोगों को पता है? मेरे स्टूडेंट्स छोड़कर प्लीज, जो न्यू स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं. वीक वॉवल्स. हनीफ इज सेइंग नो. गुड. अल्ताफ इज सेइंग नो. अश्विनी नो. अर्शिया नो. कल्याणी नो. प्रदीप नो. ओके. तानिया नो. नो. वीक वॉवल्स है इंग्लिश के अंदर. वीक वॉवल्स भी होते हैं. हाउ मेनी वीक वॉवल्स डू वी हैव इन इंग्लिश? 3. इंग्लिश में 3 वीक वॉवल्स भी हैं. इवन टीचर्स लोग को पता नहीं है. सॉरी टू से दिस. यू नो व्हाई? बिकॉज टीचर्स को खुद को पता नहीं है. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन माय क्लास, व्हिच इवन टीचर्स डोंट नो. सो वी हैव 3 वीक वॉवल्स इन इंग्लिश एंड दोस आर व्हाट? W, H and Y. We have 3 weak vowels, W, H and Y. Why weak vowels are weak vowels? अरे अभी भी प्रॉब्लम है. M is not vowel, K is not vowel, J is not vowel, B is not vowel, Z is not vowel. W, H, Y, only 3 weak vowels we have. Yes. Why? Because they act like main vowels. अभी main vowels कौन से थे? 5 थे. A, E, I, O and U. Correct? W, H, Y, they act like main vowels. W, H, Y, sometimes they act like main vowels. That's why they are weak vowels. वो main vowels कैसे acting करते हैं, इसके लिए उनको हम लोग बोलते हैं weak vowels. For example, awesome. अभी इसको हम लोग अवेसम बोलेंगे क्या? अवेसम. W येतो ना तिथं, अवेसम बोलायचं त्याला नाही. That's what awesome. Awesome means W is acting like O. What is O?
O is a vowel. So W will be weak vowel because W वहां पर O का आवाज निकाल रहा है. Awesome, awful, awesome, awful. So W is acting like O. What is O? O is a vowel. So W will be weak vowel. Same case, hour. Do we say hour? मी तुझ्यासाठी किती 2 hours वेट केले तिथं. No, we say hours. Hours or we say hour. Hour or hours means what? H is acting like A. Hour, hour, hour. Sound किसका आ रहा है? Hour. H is acting like A. And what is A? A is a vowel. So H will be weak vowel. Same case Y. Why weak vowels? Y is a weak vowel. Why? Because it will act like main vowel. For example, sky. 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 I. किसके एक्टिंग कर रहा है sky? Why? Sky, my, fly, by. Yes, it is acting like I. What is I? Guys, what is I? I is a vowel. So Y will be weak vowel. कितने लोगों का mind blew up हुआ है? Please put it into the chat box. How many of you think that, oh my God, I never knew this one before? Yes. Great. So WHY आज जाकर अपने दोस्त को पूछो. इंग्लिश मीडियम का एक आधा दोस्त रहेगा ना ऐसा एकदम कॉलर टाइट. मैं इंग्लिश मीडियम से है, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ. उसको जाके पूछना है, भाई इंग्लिश में वीक वॉवल्स कितने हैं? ते मला माहित नाही. अरे काय राव मित्रशी असा बोलायचा आता अपने दोस्त के साथ में ऐसा. या exactly, because even they don't know. All right, so we have 3 weak vowels in English: W, H, and Y. Why weak vowels are weak vowels? Because they act like main vowels. All right, same case. Now let's go for the next one. Have you ever heard this before? और इसके अलावा और कौन सी चीजें आपको पता नहीं है? We'll get back to the next one. Now इसके अलावा और भी कुछ और मैं चीजें आपके तोते उड़ाने वाला हूँ आज. Next one is what? Grapheme. अब कितने लोगों को ग्राफीम पता है? Except my students. Only new students will comment. Okay, my students please don't comment. ग्राफीम कितने लोगों को पता है? ग्राफीम. अरे यार ये क्या होता है? अब जिसको ग्राफीम नहीं पता है, may God help you. Oh no. I don't know. No, don't know. Okay, ग्राफीम. अभी ग्राफीम क्या होता है? ग्राफीम डेफिनेशन देखकर देते हैं. A linguistic unit in language in use. अभी कितने लोग अपने इंडिया के अंदर ऐसा है, सॉरी टू से दिस, आपने देखा रहेगा घर बैठे इंग्लिश सीखिए, बुक्स मिलते हैं, घर बैठे इंग्लिश सीखिए बुक्स से. आती है इंग्लिश? नो, बिकॉज वहां पे आपको सिर्फ डेफिनेशन रहेगा, टीचर नहीं रहेगा आपको पढ़ाने वाला. अब डेफिनेशन तो दिया है, a language unit in language in use. A linguistic unit in language in use. ऐसा linguistic unit जो कि language in use में यूज होता है. क्या समझा भाई? किसी को कुछ समझ में आया? नो नो, कुछ नहीं. क्यों भाई? जब तक कि आपको मैं नहीं बताऊंगा कि ग्राफीम क्या होता है, आपको समझ में नहीं आएगा. पॉइंट नंबर 1. अब ग्राफीम होता क्या है इंग्लिश के अंदर? ग्राफीम मीन्स सिंबल्स, आपके साइंस एंड सिंबल्स. मुझे एक बात बताइए, अभी जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूं, राइट? यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? गुड. अभी हम लोग सामने बैठे हैं. अभी हम लोग को चिल्लाना है तो हम लोग डायरेक्ट चिल्ला सकते हैं, ए क्या हुआ, ए तू कैसा है यार, कैसा है यार, क्यों है यार, कैसा है यार, कैसा है रे, कैसा काय झाले. लेटर में कैसे चिल्लाएंगे आप लोग? प्लीज टेल मी. ओ माय गॉड, लेटर में कैसे चिल्लाएंगे? सपोज फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय एप्पल ऑफ माय आई इज देयर, मिस्टर हनीफ. मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं. अभी हनीफ भाई को चिल्लाना है लेटर के अंदर, कैसे चिल्लाएंगे? लेटर में चिल्लाना है. अभी इमोजीज का टाइम है, यस नो, अपना व्हाट्सएप उसके अंदर अपन डायरेक्टली चिल्ला देते हैं, बट चिल्लाएंगे कैसा? बोल्ड और कैपिटल लेटर. ओके, दैट गुड. तानिया इज गुड. दैट रियलमी इज आल्सो गुड. चलो मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ, थोड़ा फनी है. जस्ट हैव अ लुक हियर. डायरेक्टली आप लोग को मैं राइटिंग में दिखाऊंगा, सो इट विल इम्पैक्ट मच मोर. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि अपना दोस्त है अदनान. ओके, अदनान भी यहाँ पर मीटिंग में है. अभी अदनान ने काम छोड़कर भाग गया, काम छोड़कर अदनान भाग गया है. अब अदनान को एक मैसेज आया, 2 मैसेज आए एक्चुअली. देयर आर 2 messages Adnan has got and messages are the same.
where are you? Another message is what? Where are you? अब अदनान को दो मैसेजेस मिले, प्लीज ध्यान देना, अदनान को दो मैसेजेस मिले, where are you and where are you? कहाँ हैं आप? सो अभी अदनान के जो बॉस है, ये जो ग्राफीम है हमारा, ये जो ग्राफीम है, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स, ये ग्राफीम हम लोगों को रिटन इंग्लिश में काम में आने वाला है। सिर्फ स्पोकन इंग्लिश से काम चलेगा क्या? नो, हम लोग को अगर रिटन इंग्लिश नहीं आता है, देन मे गॉड हेल्प अस। सो पॉइंट नंबर 1, अब अदनान को मैसेज आया है वहां पर, वेयर आर यू। तो मैसेज कैसा आया? पहला मैसेज आया वेयर आर यू, सिंपल क्वेश्चन है। तो अदनान के बॉस ने फोन किया है, ये सॉरी अदनान के बॉस ने मैसेज किया है, वेयर आर यू अदनान, आप काम पे आ रहे कि नहीं? नॉर्मल मैसेज किया है, अदनान काम पे आ रहे कि नहीं, क्या हम आपको काम से निकाल दें? नॉर्मल मैसेज। नेक्स्ट मैसेज इज फ्रॉम अदनान्स गर्लफ्रेंड, अदनान के गर्लफ्रेंड ने मैसेज किया ऐसा, अदनान वेयर आर यू, वेयर द हेल आर यू, प्लीज गिव मी द एटीएम, गो टू हेल, गिव मी द एटीएम, दैट्स इट। सॉरी, जस्ट मजाक कर रहा हूं। ऑलराइट, सो यहां पर उसने पंक्चुएशन मार्क यूज किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ऑफ पंक्चुएशन मार्क द मीनिंग इज चेंजिंग, पूरा मीनिंग चेंज हो गया है उसका, यस और नो, बिकॉज ऑफ वन पंक्चुएशन मार्क। सो इंग्लिश, रिटन इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को लग रहा है ओ माय गॉड दिस इज अमेजिंग? Good. Now I'll give you one more example. Once what happened, अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार रिटन इंग्लिश काम का है क्या यार, कुछ लिखना तो मेरे को सबको आता है, चैटिंग करता हूँ ना रात को 4 बजे तक के मैं भी। Now there was a therapist, एक थेरापिस्ट था, फिजियोथेरापिस्ट होता है ना डॉक्टर, देयर वाज अ फिजियोथेरापिस्ट ने क्या किया, he has written his own biography and he has given to an editor, उसने एक प्रिंटर को दिया एडिट करने के लिए उसका बायोग्राफी। किसने? वो डॉक्टर साहब ने, जो थेरापिस्ट थे। वो प्रिंटर ने क्या किया मालूम है, उनकी बायोग्राफी के अंदर, थेरापिस्ट के अंदर उन्होंने एक स्पेस दे दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बन गया वो? द रेपिस्ट, मतलब नहीं बेचारे बाबा सिर्फ एक स्पेस की वजह से डॉक्टर साहब बलात्कारी बन गए, चलेगा क्या? ओ माय गॉड, कितने लोगों को लग रहा है कि ओ माय गॉड दिस इज व्हाट अमेजिंग? व्हाई? बिकॉज ऑफ वन स्पेस। बेचारे थेरापिस्ट बाबा जब तक स्पेस नहीं था तो अच्छे थे, जैसे स्पेस हटा, मे गॉड हेल्प मी। सो दिस इज व्हाट रिटन इंग्लिश। एक रिटन इंग्लिश की एक मिस्टेक आपको कंपनी से बाहर कर सकती है, और एक मिस्टेक, एक अच्छी चीज आपको कंपनी के अंदर भी ले सकती है, यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड रिटन इंग्लिश, अमेजिंग इंग्लिश। कितने लोगों को पहले से पता था? न्यू पीपल, पता था कभी ऐसा? सुना था कभी ऐसा? No. Ashwini is saying no. Good. Kalyani is saying no. So this is what, एक मिस्टेक हुआ, मैटर हो सकता है। सेम केस अभी हमारे अदनान भाई हैं, अदनान भाई हैं, ग्रामर की आपको बात बताता हूँ। अदनान भाई को अभी एक लड़की है, वो आकर बोल रही है, अदनान मैं तेरी भी हूं। ओहो, अदनान फुल खुश। ओ थोड़ी देर में उसको मिला है आमिर, आमिर को बोली अदनान मैं तेरी भी हूं। दोनों दोस्त मिले, अरे यार वो मैं भी, मेरी डेट थी वो लड़की के साथ में, मैं भी मिलकर आया हूँ, दैट इज अमेजिंग। वाओ। बाद में मालूम पड़ा रही यार वो तो सेम है। अभी लड़की को फोन किया, हेलो, अरे तू मेरे से ब्लैकमेल कर रही है? बोली नहीं तो मैं तुमको बोली थी ना मैं तुम्हारी भी हूं, मैं तुमको ऐसे बोलूं कि मैं तेरी ही हूं, मैं बोली थी ना मैं तेरी भी हूं। ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट ग्रामर। कितने लोगों का माइंड उड़ा है वापस से? Yes. So this is what तेरी भी and तेरी ही, it is really just dangerous. Same case English. So how to shout in English? आप लोग को ऐसे चिल्लाना है। Getting it? Okay. Next one. Now we are going to our slide once again. So this is what grapheme in English. Grapheme. Okay. So grapheme means what? Our star, @ hash, colon, semicolon, circumflex, each and many things. Next one, अब ये ग्राफीम कहाँ पे काम में आते हैं? जैसे मैंने आप लोग को बताया that you can shout with the grapheme. Same case, अब ग्राफीम का भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी अपने दोस्त है कौन? अदनान भाई। अदनान भाई अभी कहाँ गए? शोरूम में, और वहां पे उनको एक एडवर्टाइजमेंट दिखा,
4 पैंट्स जस्ट इन 100 रुपीज। ओ माई गॉड। अब अदनान ने सबको वहां से फोन किया, अरे हेलो रामा, गना, इम्मू, बबलू, जल्दी आओ, मैं आप लोगों को पार्टी देने वाला हूँ। कई की पार्टी भाई? पैंट्स पार्टी। आज मैं सबको पैंट देने वाला हूँ, राइट। अब जैसे उसके दोस्त लोग वहां पे आए, तो दोस्त लोग ने क्या किया, अंदर शोरूम में गए। वो लोग शोरूम में जाकर देखा वो लोग ने कि उन लोग को जाकर दिया 100 रुपीज, भाई हम लोगों को पैंट्स तो प्लीज। अब वहां पे जैसे पैंट लेने के लिए गए अंदर शोरूम के अंदर, देखा वहां पर पैंट, तो शोरूम वाले ने क्या बोला, सर वेट, पहले ठंडा पानी पीजिए, 100 रुपए में पैंट किसने दिया आपको? बोले अरे आपने लगाया ना बाहर बोर्ड 100 रुपए मध्ये 4 पैंट्स है का नहीं? वो बोला अरे नहीं सर, आपने गलती किया है। क्यों सर? नीचे देखिए ना जरा क्या लिखा हुआ है उधर, 20% ऑफ। वहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑन शॉपिंग अबाउट 20,000। हाँ सर, उधर स्टार लगा हुआ है। आई सीइंग दिस स्टार गाइस। वो स्टार का मतलब था टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस। 4 पैंट्स आपको मिलेंगे 100 रुपीज में, बट कब? 25,000 रुपीज का पहले आपको शॉपिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में मिलेंगे। ओ माय गॉड, पोपट हो गया इधर। व्हाई? बिकॉज स्टार वाज देयर। तो वो स्टार वहां पे काम में आता है। गेटिंग दिस? तो ऐसा आप लोगों को काम में आने वाला है आपका ग्राफीन, चिल्लाने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन बताने के लिए। आप लोग बैलेंस चेक करते हैं, स्टार 121 हैश, यस नो? क्यों भाई? क्योंकि वो स्टार 121 हैश के ऊपर आपको गर्लफ्रेंड को कौन लगाएगा क्या वो? नो, it will directly show your balance. Why? Terms and conditions है उधर. Okay, so this is what grapheme in English. Let's move forward. Next one is what? Word. What is a word in English? Word क्या होता है? शब्द. Correct? Basic. Word. So what is a word in English? A word in English is what? A group of letters which has some meaning. A group of letters which has some meaning. जिसका कुछ मीनिंग रहेगा। सिर्फ ऐसा खाली ग्रुप ऑफ लेटर्स रहेगा पर उसका अगर मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं रहेगा। सो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, बॉल, कार, पेन, बुक, बाइक, विंडो एटसेट्रा, मोबाइल, शर्ट, बैनर, वर्ड, ये सब वर्ड्स हैं। सो व्हाट इज अ वर्ड इन इंग्लिश? अ वर्ड is a group of letters which has some meaning. For example, bottle is a word, lantern is a word, wall is a word, laptop is a word, cream is a word, charger is a word, PowerPoint is a word, wall is a word, keyboard is a word, window is a word, screen is a word. Yes or no? So word is a word. A word is a group of letters which has some meaning. For example, ball, car, pen, book, bike, window, etc. Okay? Next one. Now, if you have any questions, you can ask me into the chat box, okay? Next one is what? A very important thing we are going to show you today. That's what? Syllables. What do you mean by syllable in English? कितने लोगों को पता है? Only new people. Only new people. Only new people. Please put it into the chat box. कितने लोगों को पता है? Syllables in English. No. Kalyani is saying no. Tanya's no. Arshia no. ओके, अल्ताफ नो। सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके स्कूल का सिलेबस नहीं, कॉलेज का सिलेबस नहीं, सिलेबल। अब जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, जिसको इंग्लिश लिखने नहीं आता है, जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आता है, फॉर दोस पीपल सिलेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिसको नहीं आता है, कितने लोगों को प्रॉब्लम है आप लोगों के अंदर स्पेलिंग के अंदर? हर एक को प्रॉब्लम है, हर एक को प्रॉब्लम है। यस यस, एब्सोल्युटली, सबको प्रॉब्लम है। आपका सोल्यूशन है सिलेबल। जिसको बोलने के लिए नहीं आता है, इंग्लिश बोलने नहीं आता है, सोल्यूशन इज सिलेबल। जिसको लिखने नहीं आता है इंग्लिश, सिलेबल। जिसको रीडिंग नहीं आता है, सिलेबल। अब सिलेबल का जादू दिखाता हूं मैं आप लोग को। व्हाट इज एग्जैक्टली सिलेबल? अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड और अ साउंड ऑफ अ वर्ड। अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड और अ साउंड ऑफ अ वर्ड। सिलेबल होता है कोई भी वर्ड का एक पार्ट या फिर उसका एक साउंड, मतलब यानी शब्दांचा तुकड़ा, किसी लफ्ज का टुकड़ा होता है ना, उसको हम लोग सिलेबल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, communication, द वर्ड इज दैट कम्युनिकेशन, राइट? उसको मैंने पीसेस किया उसके, communication. So there are 5 syllables in this word. Communication. For example, Ansar, Cambridge, online, bottle, mobile, Usama, Hanif, Arshia, Priyanka. Yes or no? So this is what? Syllable.
A syllable is a part of a word or a sound of a word. किसी भी वर्ड का एक पार्ट या तो फिर उसका एक साउंड. अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, नाउ अभी मैं आपको एक ऐसा वर्ड दिखाऊंगा जो कि इंग्लिश डिक्शनरी का सबसे बड़ा वर्ड है. एंड दैट वर्ड इज व्हाट? दिस. ओ माय गॉड, इसको पढ़ूंगा कैसे मैं? कितने लोगों को लग रहा है ओ माय गॉड, अगं आई माझं काम नाही ग, इंग्लिश मी नाही करत. ओ पप्पा मला रिक्षा घेऊन द्या, जाऊन द्या, स्वारगेट मी मारतो बरोबर. येस नो? ओ माय गॉड, गेला. कैसे पढ़ेंगे? सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलिडोशियस, ये भी एक न्यू वर्ड है इंग्लिश के अंदर. सो लॉन्ग, ये वर्ड को मैं इजीली पढ़ सकता हूं. न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल्केनोकोनियासिस. दिस इज व्हाट? सिलेबल का कमाल है. सिलेबल जिसको पढ़ने नहीं आता है, लॉन्ग वर्ड्स है, पढ़ने नहीं आता है, सिलेबल. दैट्स व्हाट? न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल्केनोकोनियासिस. In this word we have 45 letters and 19 syllables. 19 syllable का word है ये. New mono ultra microscopic silicovolcanoconiosis. Oh my God, जब आप लोग जाके पब्लिक में बोलेंगे, amazing. Yes, किरण, it is a biological term. ये एक्चुअली एक डिजीज का नाम है. लंग डिजीज होता है ना सिगरेट पीने से, वो डिजीज का नाम है ये. बट सपोज अगर आपको ऐसे वर्ड पढ़ने के लिए नहीं आया तो आप लोग क्या करेंगे? एक और वर्ड है, मैं आप लोग को दिखाता हूं अभी. That's what the word is there in English. Supercalifragilisticexpialidocious. Oh my God. Suppose for example, अभी अदनान को गर्लफ्रेंड का तारीफ करना है. Oh, you are wonderful. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको? एकदम बड़ा चढ़ा के. You are supercalifragilisticexpialidocious. काय बोलला? गूगल वर चेक कर. You, आपने वहां पे जैसे बोला गूगल वर चेक कर, सामने वाले बोले माझे वडील येतात ते इंग्लिश मध्ये. सल्यूट. व्हाई? इतना जबरदस्त वर्ड तो मुझे किसने भी नहीं दिया था आज तक के. वंडरफुल, इट मींस वंडरफुल, इट मींस एक्सीलेंट. कितने लोगों का माइंड आउट हो गया है अभी फिलहाल में? द वर्ड मींस वंडरफुल. supercalifragilisticexpialidocious. जुनैद, अर्शिया, कल्याणी, मुद्दू, हितेश, तानिया, हनीफ. So this is what दुनिया क्या बोलेगी? एक्सीलेंट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, वंडरफुल. आप जाकर क्या बोलेंगे? Oh my God, this is supercalifragilisticexpialidocious. Oh my God. Why? इतना इजी किस लिए पढ़ रहा है ये पता है आप लोगों को? Because of syllable. Because of syllable. So that's what new mono ultra microscopic silicovolcanoconiosis. So this is what a syllable. तो syllable का कमाल है आप लोगों को. Syllable will teach you how to write English, how to speak English, how to read English, and how to spell English very well. So syllables are very important. Detail में आप लोगों को session में मिलेगा. All right. Next one. Now, next topic we are going to see today, and that's what? Sentence in English. What is a sentence? Sentence का मतलब होता है जुमला, वाक्य. So sentence, the definition of sentence is what? A group of words which has complete meaning. जिसका meaning complete रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Sentence. A group of words, अभी हम लोगों ने words देखा था, वो words को combine करना है, उसका group बनाना है, और उसको हम लोग बोलेंगे sentence, जिसका पूरा meaning होता है. For example, play in the garden, sentence है, full stop at the end. Come at the station, station पर आओ, sentence है, full stop at the end. Next, see you in the afternoon, full stop at the end. Why? Because it's a complete sentence. So see you in the afternoon, come in the garden, please give me a call, I will call you later, sentence. Please give me a sentence, etc. Okay, so what is a sentence in English? A group of words which has complete meaning. All right, next one. Now, next one is what? I reached the station, but the train had already departed. क्या है ये? Is this a sentence? Is this a sentence? I reached the station, but the train had already departed. No, Tanya. No, Osama. It's not a sentence. क्या है ये? ये कुछ और है. इसको बोलते हैं हम लोग clause.
क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, वो आप लोग देखेंगे आगे सेशन में. नाउ बाय द वे, एट द एंड ऑफ द डे आई हैव वन क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन फॉर यू. मेरे पास में एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास में. नाउ माय क्वेश्चन इज देयर, how many alphabets do you have in English? Please put into the chat box. Only new students, not my students. Tanya is saying 26. How many alphabets do you have in English? 26, 26, 26. Arshia is right. Very good, very good. अरे भाई अभी तो पढ़ाया, अभी तो पढ़ाया. We have only one alphabet in English. Why? Why? Because A to Z, it is what? One set. Yes or no? A to Z is only one set. So we are going to call it English alphabet. 26 तो letters हैं. Oh my God, अरे काय केला मी है. इसके लिए बोल रहा हूँ आपका mindset. Please open up your minds. Please open up your minds. Hanif is laughing. Oh my God, क्या हो गया यार ये तो. So this is what we have, only one alphabet but 26 letters we have in English. All right. So this is what English basic here. कितने लोगों को पसंद आया ये? कितने लोगों ने आज कुछ नया सीखा है? How many of you? Yes. Ashwini is also laughing. Oh my God. Junaid, Hitesh, Tania, Hanif, Altaf, Usama. Great. Thank you so much, Ashwini. So this is what just mind blowing. ये तो आज हमारा first day था. It was only the first day. और उसके अंदर मैंने जितना हो सकता था आपने किया. One more thing, always remember. Always be solution oriented, not the problem oriented. You can do it and you will do it. Always remember. मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता है, ऐसा है वैसा है ये वो, कभी भी मत सोचो. See, I was the person who was from Urdu medium. Okay, so I was the person who was from Urdu medium and now I'm speaking English. For example, good morning ladies and gentlemen. Today I'm going to introduce you. I'm Ansar Idrisi. I'm the person who has cracked IELTS exam twice with 8.5 bands. I was the person who has been with Germany, the person with German people. I've been working with many foreigners before. I've been working with them. I've been enchanting with them. Amazing things. You can speak English like me. It is my belief. Yesterday, you might have seen my, this one. What do we say? My status as well. One of my students is there. She's in the second year now. And she's got the job of 22,000 at the beginning. उसको beginning में 23,000 का job लगा है. अभी वो लड़की just 20 साल की है, सेकेंड ईयर में. आगे जाए तक अभी पूरा लाइफ बाकी है उसका. कौन से लेवल पे जाएगी वो? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. सो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन इज गोइंग टू मेक यू एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल. गेटिंग इट? आप लोग भी मेरी तरह बोलेंगे फ्यूचर में. लेट मी ग्रैब वाटर, 1 minute प्लीज. मुझे भी आप लोग के पास से ऐसा ही चाहिए. Getting it? That's what. For example, my name is Paul. I'm married, and my wife's a doctor. We have 2 children. My daughter is 8, and my son is 3. My name is Isabel. I'm 19 years old, and I'm a student at a university. I have one brother. His name's Alan. My mother's a teacher, and my father's a taxi driver. Oh my God! क्या बोलता है? Yesterday, what happened? मेरे student थे 2. उन लोगों से मेरा ऐसा Zoom पर meeting हुआ. पहले मैंने मराठी में बात किया. So they said, अरे यार. बाद में जब मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया, बोले फॉरेनर मराठी बोलत होता. Why? लोग ऐसे ही बोलना चाहिए. Okay? How many of you want to learn the same English that you will get the job in international company easily and you will be talking to foreigners easily and you'll be learning and earning amazing? Bushra. Okay? That's cool. So this is what we hope for the best one in your career. And we'll see you tomorrow again. I'm so sorry that today's lecture was getting into 1 hour only. So please be ready for today's. So today the tip was there, basics. And don't worry, we'll have something great for you tomorrow. Now tomorrow is what I'm going to teach you tomorrow. Tenses. कितने लोगों को tenses के अंदर problem होता है? How many of you have problem with tenses? Okay, Kalyani. Okay, Tania, Junaid, Azruddin, Kiran. Okay, Nikita. Ankit, Pradeep, Priyanka. Okay. So tomorrow is the best day. That tomorrow we have session for tenses. कल हमारा tenses का session है. Please don't be absent. Okay. Hitesh also little problem. Sumayya. Okay.
सो कल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टेंसेस किस तरह होते हैं, किस तरह उसको काम करते हैं, किस तरह बोलेंगे, किस तरह क्या होता है उसके अंदर टेंसेस को बोलना कैसे है. सो इट इज रियली वेरी इजी. ऑलराइट, we'll see you tomorrow as well, and please keep on sharing with your friends, and if the other friends are there, if they want to join, they can join for workshop, no problem at all. I hope you have loved the workshop today and you have learned many things. Did you learn? Please put it into the chat box. Yes, 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 yes. Kalyani saying yes, learned something new. Junaid saying thank you so much, thank you so much, you're welcome. Bushra saying yes, amazing session today, thank you so much Hanif, that's great. Ankit 100% good. So this is what, my dear, you have to speak amazing English. All right, I believe so you're going to do it. You can and you will. So please take care and cheerio. What do you mean by cheerio now? आज एक नया word लेकर जाओ आप मेरे पास से. Cheerio. Cheerio means goodbye. दुनिया क्या बोलती है? Goodbye, goodbye, goodbye. बोर झालोय आपण आता. Goodbye, goodbye बोलून. Goodbye, it is a normal word. Instead of saying goodbye, you can say cheerio. अभी आपका दोस्त बोलेगा काय रे काय? चेक इन द डिक्शनरी. डिक्शनरी मध्ये चेक करा, उसको डायरेक्ट इतना बोल के निकल जाने का वहां से. सो चीरियो मीन्स व्हाट? सी चीरियो डिक्शनरी में आपको डायरेक्ट प्रूफ दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं कुछ भी फेंक रहा हूं. सी माय ऑन माय स्क्रीन. चीरियो यूज एन एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेस ऑन पार्टिंग. मीन्स व्हाट? गुड बाय. चीरियो मीन्स गुड बाय. ओके, चीरियो. विल सी यू टुमारो at 5 o'clock. All right, take care. Bye bye. Cheerio.